is by Crow and Crow. In 1962, in his book Introduction to Education, defines the term as follows. Curriculum includes all the learner's experience in or outside the school that are included in a program which has been devised to help him develop mentally, physically, emotionally, spiritually, and morally. I have written these few points: physically, mentally, emotionally, spiritually, and morally. So, what does it reflect? It reflects that curriculum has been designed to develop all-round personality of the learner. All-round personality of the learner that includes following aspect: mental, physical, emotional, spiritual, and morally. So what is connected with the curriculum? The main point that is related to the curriculum is that a curriculum is that helps to develop all-round personality of the students. So finally, what we can conclude, that a runway passing through which a teacher has to reach at a last point, but the essential condition of passing through all the stages is that it must give emphasis on the personality development that includes mental, physical, emotional, spiritual, and moral development of the students. So this is about the concept of the curriculum. One more definition is here. Secondary Education Commission, that is Kothari Commission. It is very familiar commission. Kothari Commission. Kothari Commission says that curriculum does not mean only the academic subject. I told you earlier that we generally say that whatever we are teaching in the classroom, this is curriculum. So the similar concept is here. Curriculum does not mean only the academic subject traditionally taught in the school, but it includes the totality of experiences that a pupil receives through the manifold activities that go. Take a minute, just a minute. इसका बीच में वो आ रहा था बच्चे. हाँ. Yes, thank you. Yes, so see this slide. What the Secondary Education Commission says? Secondary Education Commission says that curriculum does not mean only the academic subjects traditionally taught in the school, but it includes the totality of experiences that a student or a pupil receives through the manifold activities that go on in the school, in the classroom, library, laboratory, workshop, playground, and in the numerous informal contacts between teachers and students. So this is very clear definition. It says that what is curriculum? Curriculum is totality of experiences that a student receives in the classroom, laboratory, workshop, playground, classroom, library, wherever and whenever he is interacting with the resources, with the kind of infrastructure. These all come under the purview of this curriculum. In education, it is generally identified with a course of studies or list of subjects prescribed for a course. In fact, a list of subjects forms only a part of the curriculum, and it does not constitute the whole of it. A curriculum means the total situation or all situation
selected and organized by the institution and made available to the teacher to operate and to translate the ultimate aim of education into reality. So this is all conclusion regarding the definition of curriculum. क्या conclusion है? Conclusion is that whatever the students are interacting with the resources, whatever the experiences they have received, and whatever they have studied in the classroom, these all comes under the scope of curriculum. So this is the whole definition of curriculum. Curriculum does not mean that only the list of subject. Curriculum does not mean only the selected studies, or not the syllabus, or not the interaction with the teacher only, but the area of curriculum is wider, and it includes all kind of experiences that the students receive from every corner of the institution. Now see, curriculum and its elements. Sometimes we also remain confused that what is curriculum activities, what is co-curricular activities, what is extracurricular activities. So that should be in our mind very clear that what are the curricular activities. Curricular activities are self-study, creative writing, observation, experimentation, work experience, projects, etc. So now you see self-study. If you are instructed in the classroom to a student that I have delivered this lecture, you please go to the library and study about this book, this book, this book. And student is going to the library, used to go to the library, and they are studying there. That is self-study. This self-study is a part of curriculum element, or it includes that the student is going through the curriculum. Similarly, creative writing. So you have taught one English poem. Suppose you are a teacher of English, and you have been taught one poem in the classroom. Now you are saying to the student that you write your own views on this topic. So this is creative writing. So creative writing is also a part of curriculum. Creative writing always enriched your lesson and gives one opportunity to the students to know more about the topic that you have taught in the classroom. So it is a kind of extra activities, or it's a kind of extra pains or efforts put by the teacher to enrich the knowledge, or to know to what extent the students are able to understand the topic. Observation, experimentation, work experience, projects, these all comes under the head of curricular activities. Next one is co-curricular activities. Co-curricular activities, academic discussion. Academic discussion not only related to the topic that you have taught in the classroom, but it may be beyond it. It may be another topic that needs some certain kind of discussion. So the academic discussion means any topic related to the syllabus, curriculum, or related to the studies of the students, and there is a kind of discussion, exchange of ideas, exchange of views between resource person and the students. They all are come under the part of co-curricular activities. Debates, say for example, there is any competition that you have organized, giving one topic to the students, favor mein boliye ya opposition mein boliye. So these all comes under the head of co-curricular activities. Participation in symposium, panel discussion, seminar, webinars are going on nowadays through online. So any kind of participation of the students in academic discussion always come under the co-curricular activities. Extracurricular activities. So just see that we never like to make a distinction between these terms, co-curricular, extracurricular.
always confused. Somewhere we are saying it is extracurricular, somewhere we are saying co-curricular. But this slide shows that separately that which activity comes under the co-curricular activity and which activity comes under the extracurricular activities. Extracurricular activities means field trip, sports meet, celebration of birthdays of national leaders and of national festival are extracurricular activities. These all come under the extracurricular activities, that is celebration of 15th August, celebration of 26th January, 2nd October, and 14th November. These are the birth anniversaries of our great leaders. These all comes under extracurricular activities, but essential to celebrate, because our student must know what is essential to know about the leaders or about the national development who have made sacrifice, and those who have done a lot of contribution for our progress, for national progress, and their sacrifice is recognized by celebrating their birthdays. So these all comes under the head of extracurricular activities. See this, now we come to the point. See this, these are all the correlates. Correlates means that are related to each other, and without anyone we can't complete this cycle that is on the screen. See this, these are the 5 steps for a curriculum, and these all steps are very essential, interlinked to each other, and if one is missing, another can't be fulfilled. So these all are in a sequential manner also. You can't keep the point number 1 at the point number 4. No, this is in a sequential order that completes the cycle of curriculum. Say, for the first is objectives, and I told you in the first slide that we always enters with objectives and we ends to evaluation. So what is the first correlate of curriculum? The first correlate of curriculum is objective. Objective means what we have to do, what we have to complete, what we have to perform, and what are our wishes that we are going to get through this curriculum. So these are the objectives. Second is the content. To get the objectives, we provide certain kind of content to our learners, to our students. These content are in the form of textbook, resource books, or maybe in the form of your lectures, maybe in the form of pamphlets, documents, and other kind of resources, print material that you provide to the students to fulfill the objectives that is contained. Learning experiences, how you are instructing the students to interact with the content, and in what way they are interacting with the content, that comes under the scope of learning experiences. Next one is instructional strategy. Instructional strategy says about the method, that is teaching method. Which method is suitable for which subject? Say, for example, you are a teacher of mathematics, you can't teach and the method that is usually used in the case of social science. Or you are the teacher of language, you can't use the method that a teacher of mathematics is using. No, you can't use this. So, nature of the subject says which instructional strategy is suitable, or which instructional strategy is essential, which method is essential to get the objectives or to make the learning experiences of the students enriched with the help of suitable method. So which method is suitable for your subject, you have to choose your instructional strategy. The last point is evaluation. Evaluation means whatever you have done in the classroom, now you have to assess it. You have to evaluate it, that how far you are able to
achieve the objectives that you have framed in point number 1. So one by one, we move to runway, to go through the runway to get the curriculum in full, with full targets. So these all are the interconnected correlates of the curriculum that says that a teacher has to start from objective, passing through content, learning experiences, instructional strategy, finally reached at a point that is evaluation. Okay, so you see this screen, this slide very carefully. You can't say that objectives, then the instruction strategy. No, these are in a sequential manner, and these all are interconnected with each other. Now I will take every aspect of this correlate separately, and I would like to discuss that in what way we frame the objective, what kind of content we try to select, and learning experiences, methods, and evaluation processes. First, we take objectives. So let us take a minute. Let me, now I'm coming now. Wait. What's that? ओपन कर दीजिए, बंद ही कर दिया। हाँ बस सही किया, ये चला आवाज आएगी। अच्छा ठीक है बंद, ठीक है। दरवाजा बंद कर। Yes, sorry for disturbance. There was AC in full speed and that I can't tolerate. So I instructed the person not to go through this. Okay, now let me come. These are the principles essential for curriculum designing. These principles are principle of utility. Principle of utility says that what kind of content is useful for us. That is essential to select for the curriculum. That is principle of utility. Principle of variety, that the things that you are explaining in the classroom, don't give only one example, or don't confine yourself only to the content of this textbook, but try to include much more examples. Try to include much more examples and try to explore the content that you explain, that you have to teach in the classroom. So this is very essential aspect, that without your efforts, we can't enrich the curriculum and we can't go through in a proper way without including the variety of content in the classroom. Principle of need, what is needed for the students, because the age level of the student differs. Primary level, upper primary level, the students, the different psychological characteristics, so their needs also differs. So what kind of needs you want to fulfill through your curriculum, it is very essential to know. Principle of relevance. Principle of relevance means what is relevant to the students to teach. And irrelevant content will always be in the textbook and it can't be utilized by the student. So relevance is very essential. Principle of readiness. Principle of readiness means
if you are taking a big example or the complicated example, complex one, they will never be able to get it, because they will start confusing, and there will also be possibility that the students will try to withdraw from this subject, and they have one kind of opinion that mathematics is very difficult subject, English is very difficult subject. No. Why they are saying? Because they have started with a complicated kind of reactions, complicated kind of numericals, and now this is concept in the mind that this is very difficult subject. So always try to start from a very simple form, so that they will be able to accept the concepts in a proper way, and favorable opinion they can develop in their minds related to subject. Principle of flexibility. Say, for example, there are 2 prescribed books for your subject, and these books are so old that when these books were developed, there was no modernization, there was no such kind of innovations. So the book is lacking so many things that have been developed. Such kind of books may be modified and may be enriched by putting the examples by the teacher, and flexibility should be here, not the rigidity. You can't say that हम तो हमेशा से इसी को पढ़ाते चले आए हैं और इसी कंटेंट को हमको पढ़ाना है. No, ये ऐसा नहीं कहना है, because you have to be flexible as far as selection of content is concerned. You have to include those developments and those innovations in your lecture that have been developed after the writing of the textbook or the prescribed book that you have been mentioned in your syllabus for the students. And today something happens new that must be informed in the classroom to the learners. It means you have flexibility in your instructional strategy, and if you are strict कि ये नहीं आता है एग्जाम में, ऐसा हम नहीं पढ़ा सकते हैं, तो वो क्या है? वो this is rigidity of a teacher, and this kind of rigidity or this kind of saying one kind of tradition that you are following from one year, that when you have started your teaching to the last, when you are going to retire, the same notes, same book. So these all doesn't give good reflection for a good teacher. Always try to be flexible, add more innovations, developments, examples, and whatever the writing that you want to add, you can add in your lecture. Integration, articulation, and coherence in curriculum. This is a kind of theoretical work that a curriculum framer has to do. Say, for example, when we are developing any book for any class, we have to make a coherence. We move from simple to complex. We integrate all the content in a manner that it moves from simple to complex in a related manner, or it must have some kind of relevance to the students. So this part is not essential to go through. You may come to the articulation in curriculum designing. This is horizontal articulation in that way. It means someone is in a one class, English, Hindi, Urdu, mathematics, social science, वो सब पढ़ता है. तो उसमें बच्चे के जो subjects रखे जाते हैं, जो भी subjects the subjects that a student has to study, they are having the same kind of difficulty level. ऐसा ना हो कि मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट है और जो सोशल साइंस है वो बहुत इजी है उस क्लास की, तो क्या होगा? बच्चा सोशल साइंस में बहुत नंबर लाएगा, मैथमेटिक्स में एकदम 0 चला जाएगा. तो हॉरिजॉन्टल आर्टिकुलेशन का मीन्स है देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ बैलेंस बिटवीन द सब्जेक्ट्स दैट मूव्स फ्रॉम one level to the another for the similar class. Vertical articulation means if we move
vertical, the subject goes on difficult. Say for example, ABCD शुरू में सिखाया, फिर उसके बाद स्पेलिंग सिखाई, उसके बाद सेंटेंसेस सिखाए, तो ये क्या है? This is vertical articulation. And this vertical articulation also needs that the level of difficulty of the subject must be in coherence, and there should be a balance in these kind of vertical articulation. Coherence in curriculum design, cognitive coherence, organizational coherence, इसका भी ध्यान रखा जाता है जो curriculum frameworks बनाते हैं इसको. So क्या ध्यान रखते हैं कि बच्चे का जो mental development है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग हो. ये ना हो कि बच्चा तो 12वीं क्लास का है, उसको हम बीएससी का लेवल दे रहे हैं. नो. Cognitive coherence and organizational coherence are also considered when we develop the curriculum. अच्छा, अब मैं उसी पे आती हूँ जो पहले मैंने आपको बताया है, ये ऑब्जेक्टिव्स पे. Objectives में there are, we usually use Bloom's taxonomy. Have you heard about this Bloom's taxonomy? Bloom's have divided the objectives into three, that is cognitive, affective and psychomotor. Cognitive means mental development. Mental development related to brain, and affective development is related to heart जो होता है हृदय हमारा, और साइकोमोटर डेवलपमेंट रिलेटेड टू दिस स्किल जो हम हाथ से लिखता है बच्चा और अपने मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, या ड्राइंग बनाता है, पिक्चर बनाता है, स्केच ड्रॉ करता है, तो ये क्या है? ये साइकोमोटर लर्निंग कहलाती है. तो Bloom's have divided the body organs into three parts. First is cognitive, second is affective, and third one is psychomotor. The first one is cognitive. Cognitive is related to brain or the mental. So when we take mental processes, we keep in mind that the student must receive in a very simple manner, then the thinking process goes on, and finally he is able to make certain kind of conclusion. So Bloom's have divided the taxonomy into three: cognitive, affective and psychomotor. In cognitive domain we take recognition. कैसे पहचाना कि ये उस चैप्टर का सवाल आया है. आइडेंटिफिकेशन, जैसे आप क्लासिफिकेशन करते हैं एनिमल्स का जोलॉजी में, आइडेंटिफिकेशन इसी तरीके से कॉन्सेप्ट की आइडेंटिफिकेशन जो है वो स्टूडेंट कैसे करेगा. उसके बाद डिफरेंस कैसे करेगा किसी दो कॉन्सेप्ट्स में, फिर उसको एक्सप्लेन कैसे करेगा, उसके बाद कंक्लूजन कैसे ड्रॉ होगा. तो ये जो ऑब्जेक्टिव है कॉग्निटिव डोमेन का, वो डोमेन ब्रेन से रिलेटेड है और सारे प्रोसेसेस जो ब्रेन में चलते हैं वो उसको फॉलो करता है. जो ब्रेन में प्रोसेस चलते हैं, जैसे हम पहले सोचते हैं एंड आफ्टर थिंकिंग वी स्टार्ट राइटिंग, देन वी कंक्लूड कि ये लिखना ज्यादा सही रहेगा. तो ऑल द प्रोसेसेस दैट कम्स अंडर द ब्रेन दैट follows this category, that is cognitive category or cognitive domain. Next one is affective domain. Affective domain means that is related to our heart. Say for example, a student is saying I like mathematics very much. तो वो क्यों कह रहा है ऐसा? Why learner is saying like this? There is some kind of interest. उसका वहाँ कुछ interest है, इसलिए वो ये कह रहा है. तो इस इंटरेस्ट को हम कैसे डेवलप करें अपने स्टूडेंट में, ये स्टार्ट हम कॉग्निटिव डोमेन से ही करते हैं. वी स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम कॉग्निटिव डोमेन. अगर हम एकदम हवा बना के किसी सब्जेक्ट को पढ़ाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि वो बच्चा उस सब्जेक्ट की तरफ आकर्षित नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, और वो कहेगा ये तो बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है. बट इफ वी स्टार्ट एनी सब्जेक्ट इन अ वेरी सिंपल वे and we present some example, like very creative example, some kind of scientist stories,
and some kind of happenings that make a learner much more great as he was not in the earlier stages. So वो सब क्या मिलेगा उसको, उससे encouragement मिलेगा, उससे उसको motivation मिलेगा. तो ऑब्जेक्टिव्स जो हम बताते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को हमेशा सिंपल फॉर्म में बनाइए और उसमें ब्रेन प्रोसेसेस जो चल रहे हैं पहले शुरू में लाइट रखिए, सिंपल रखिए, एंड लेटर ऑन इट बिकम कॉम्प्लिकेटेड. Until and unless the students like the subject, you can't be a good teacher. जब तक बच्चा पसंद ना करे आपके सब्जेक्ट को और रुचि के अनुसार वो उसको ना पढ़े, तब तक आप एक अच्छे टीचर नहीं हैं. क्योंकि जबरदस्ती आके क्लास में स्टूडेंट बैठा हुआ है और आप उसको पढ़ा रहे हैं, तो वो एक अच्छी पढ़ाई नहीं है. एक अच्छी पढ़ाई क्या है? जहाँ पे स्टूडेंट मन से आता है और कहता है कि मैं फला सब्जेक्ट को, पॉलिटिकल साइंस को या इंग्लिश को, वॉट एवर द सब्जेक्ट इज, मैं इसको पढ़ूंगा क्योंकि इसमें मेरी दिलचस्पी है, मेरा इसमें आकर्षण है, मेरा इसमें शौक है. तो वो क्या होगा, वो कहेंगे कि हम ये होल हार्टेडली इन्वॉल्व है, ये बच्चा होल हार्टेडली इन्वॉल्व है और ये पढ़ना चाहता है. Now you will observe that when the student is able to go through your subject with interest, he will start to writing something. Say for example, if you have given one question as a homework, he will go through this homework and he will write certain kind of experiences, certain kind of views, and he will write certain kind of ideas, and you will be very happy to see that whatever the lesson I have given in the classroom, the student is able to explore it. So this is your pains, this is your efforts, that today this student, those who is having the negative values for this subject, is able to study with this subject, with your subject. So this is your credit and this is your pains, efforts that make the students to learn more from the subject. Ma'am, slides are not Ma'am, slides are not moving. Sorry to disturb you, madam. The slides are not moving. That is not moving. regulate slides, ma'am. क्या हुआ? What happened? Slides are not moving. Slides not. No, I'm not moving slide. I'm not moving slide. I'm going through this only. Okay. I'm going through this cycle only. So there is no slide. Okay. आप परेशान ना हो. Okay, madam. नहीं है सिर्फ, ठीक है. उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स का तीसरा पक्ष आता है, तीसरा पहलू आता है, वो है साइकोमोटर. साइकोमोटर का मतलब होता है कि जब बच्चे को पढ़ने लिखने का शौक पैदा हो गया तो वो उसकी राइटिंग शुरू कर देता है. सो the learning starts from cognitive processes and it ends to the psychomotor. So these all comes under the category of Bloom's taxonomy. Bloom's क्या कहता है कि कोई भी उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं है जब तक बच्चा पढ़े, समझे, सोचे, उसके हृदय में कुछ ऐसी भावनाएं आए कि ये बहुत अच्छा विषय है और उसके बाद वो राइटिंग भी करे. तो जब तक वो राइटिंग नहीं कर रहा है तो ये लर्निंग जो है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी. तो आपका क्या उत्तरदायित्व बनता है कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएं उस सब्जेक्ट के लिए आप सबसे पहले बच्चे का कॉग्निटिव एस्पेक्ट उसका डेवलप करें, उसके बाद उसके हृदय में वो विशेष डेवलप करें कि वो सब्जेक्ट पढ़ रहा है, एंड आफ्टर दैट ही इज एबल टू राइट समथिंग ऑन द कॉपी ऑल्सो. उसके बाद हम आते हैं कंटेंट पे. कंटेंट जो है वो जो ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं उनको पूरा करने के लिए सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट है. सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट जो है वो कंटेंट में आता है और इसके लिए ये जरूरी है कि हम
प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ नीड, प्रिंसिपल ऑफ रेलिवेंस, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इन सब की पूर्ति करें और इन सब के जरिए हम अपने कंटेंट को सिलेक्ट करें। जैसे आप कोई किताब आपने पढ़ी और आपने कहा कि ये अच्छी किताब नहीं है, दिस बुक इज नॉट गुड, बार बार रिपीट कर रहा है, वो एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा है, तो ये क्या हुआ, ये किताब की क्या है, इस किताब की यूटिलिटी कम है। ऐसी किताब की यूटिलिटी कम है जहाँ पे रिपीटिशन ज्यादा हो रहा है, एग्जाम्पल्स कम दिए गए हैं और जो पढ़ाने वाला है और जो पढ़ने वाला है वो उसमें अच्छी फीलिंग्स नहीं ला पा रहा है। तो कंटेंट भी हमारा ऐसा होना चाहिए, वी मस्ट सिलेक्ट द कंटेंट एज टू फुलफिल आवर ऑब्जेक्टिव्स इन अ बेटर वे। सो कंटेंट मस्ट बी क्रिएटिव, उसमें बहुत से एग्जाम्पल भी हो और हर वक्त थ्योरेटिकल एग्जाम्पल ना देखिए आप, कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें हार्मोनियस डेवलपमेंट बच्चे का हो रहा हो, स्टूडेंट का हो रहा हो, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। Now, what is your duty here? Your duty is that someone has written one textbook for your subject economics. अब आप उसी किताब को पकड़ के और हमेशा उसी को पढ़ाते हैं, तो ये ठीक नहीं है। आपको उस किताब को एज अ रिसोर्स टेक्स्ट बुक इस्तेमाल करना है, आपको पढ़ाना अपने ओन मेथड से है और आपको अपने उसी तरीके से पढ़ाना है जिससे कि सब्जेक्ट का क्लैरिफिकेशन स्टूडेंट को ज्यादा हो। ये जरूरी होता है कि सब्जेक्ट का क्लैरिफिकेशन जब स्टूडेंट को ज्यादा होता है तब वो सब्जेक्ट के प्रति रुचि उत्पन्न कर पाता है। सो कंटेंट सिलेक्शन इज वेरी एसेंशियल पार्ट। इफ यू हैव टेकन a textbook as your master book and every time going through this creates a monotony in the classroom and student will never be able to learn more and he will never like to select this subject, as the subject is always repeating and is not giving new knowledge to the students. So always keep in mind, content selection is your own choice, is your own efforts. Try to give the content to the students in a way that they can get much more knowledge from the content instead of become a bookworm. वो किताबी कीड़े बन गए, उसी किताब को उन्होंने रट लिया और फिर उसी को इम्तिहान तक लेके जा रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट फिर आगे चल के उनके मतलब का नहीं रहेगा। वो सब्जेक्ट आगे चल के उनके लिए एक हवा बन जाएगा, किसी कंपटीशन में वो बैठ नहीं सकते और उनके नंबर जो सर्टिफिकेट पे हैं वो 77 है और 78 है, तो फिर एक क्वेश्चन मार्क शुरू हो जाता है कि इतने सारे नंबर लाकर भी बच्चा कुछ नहीं बता पा रहा है। उसकी वजह यही होती है कि हमने एक किताब से पढ़ा दिया, उसी किताब का पेपर बना दिया और बच्चे ने उस किताब को खूब रट लिया, जाके उसको इम्तिहान में लिख दिया और नंबर भी अच्छे आ गए। लेकिन what is utility of this content? This is a big question mark. Always explore the content in that way that the student be able to understand it, and with understanding he can do something new with the subject out of the box. कुछ ऐसा भी कर सके वो कि जो कुछ नयापन लेके आए। तो ये आपके हाथ में है कि आप उसको कंटेंट कैसा पढ़ा रहे हैं। लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपका और उनका जो इंटरेक्शन हो रहा है क्लासरूम में, वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस है। आप सिर्फ वन वे प्रोसेस चल रहा है, स्टूडेंट का कोई इंटरेक्शन नहीं है, आपने जो याद किया था, जो पॉइंट्स आप लेके आई थी, आपने उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। Why you are teaching these points? The reason behind is that we have only 1 month and we have to complete these 4 topics. So there is only one way, that lecturing. So this is the wrong way of teaching. आपको बच्चे को बीच बीच में इंटरेक्ट भी करते चलना है और उस इंटरेक्शन के थ्रू आपको आगे भी बढ़ते जाना है। जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस आपके और स्टूडेंट के बीच के इंटरेक्शन से होते हैं, उनमें जो कुछ भी बच्चा सीखता है उसकी वैल्यू बहुत होती है। और लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी 2 तरीके के हैं। One is the direct learning experiences, another is the indirect learning experiences. Direct experiences is that the student receive in the classroom when the teacher and taught is interacting. Indirect experiences are that a student doing with self-study and saying that
I have learned this also, and I can add here. So direct and indirect, both experiences when combined to each other, they enrich the knowledge horizon of the student. Instructional strategy means the methods that a teacher follow. Say for example, lecture method. This is the most frequently used method by the teacher. Madam, Excuse me, Professor. जी, madam, your presentation is not Ji. showing. Madam, please share the screen. Your PPT is not showing. Please, participants, don't present your PPT. अच्छा आपने क्या present? Okay, ma'am. Oh, okay. Yes, instruction strategy means methods that you have adopted to teach the lesson. So lecture method is the much more frequently used method. That is the lecture method. And but this is really a wonderful method, and usually used in the university and colleges, this method. So we can't deny its importance, but it becomes so weak when there is only one way process. आप बोलते चले जाएं, दूसरे की ना सुने, तो आप क्या कहेंगे कि ये तो मेरी सुनते ही नहीं है, अपनी अपनी बोलते हैं. तो वही चीज यहाँ पे होती है कि आप अपना लेक्चर अगर दे रहे हैं और देते चले जा रहे हैं और दूसरे को सुनने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो ये मोनोटोनी डेवलप करता है. और इसमें बहुत सी बातें हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल स्टूडेंट जो है वो सो गया इन द सेंस कि उसका जहन कहीं और हो गया, वो आपसे कनेक्टेड नहीं है. सो ये जो आप बोल रहे हैं वो उसके लिए यूजफुल नहीं होगा. अनदर थिंग इज दैट कि आपने पुराने नोट्स को लेके पढ़ा दिया, तो वो क्या होगा, उससे स्टूडेंट का भला नहीं होगा. लेक्चर मेथड इज द बेस्ट मेथड, but when it is best method, when you are utilizing this method in a proper way. कैसे करें? Say for example, you may divide your lecture into points. You may divide your lecture into points, and these points are further divided into sub-points, and each and every sub-point is elaborated by you. एक point को आप उसको बताते चलिए, और बताने के साथ साथ उससे सवाल जवाब भी करिए, और कुछ पॉइंट्स जो बहुत जरूरी होते हैं उनकी नोटिंग भी करवाइए कि देखिए ये इसमें नोट कर लीजिए, ये पॉइंट जरूरी है, इसको पॉइंट को नोट करिए. तो इससे क्या होगा, इससे उस लेक्चर की जो मोनोटोनी है वो खत्म हो जाएगी, और आपको अच्छा लगेगा उस सब्जेक्ट को पढ़ाना भी, और बच्चों को भी अच्छा लगेगा उसको पढ़ना. कैसे करना है कि आपको एक पॉइंट, पूरे लेक्चर को डिवाइड होल लेक्चर इनटू पॉइंट्स and divide each and every points into sub points, and whatever the concept that is essential to deliver, give them in the form of dictation. उसको नोट के फॉर्म में दे दीजिए. बहुत लंबा नोट नहीं दिया जाता है, बहुत छोटा ही नोट दिया जाता है, 3 और 4 लाइंस का. तो बीच बीच में लिखवाते भी आप जा रहे हैं, लेक्चर भी करवाते जा रहे हैं, बच्चे से सवाल जवाब भी करते जा रहे हैं, तो आपकी टीचिंग वैसे ही इफेक्टिव हो जाएगी, और वो करिकुलम जो आप चाहते हैं उसके ऑब्जेक्टिव अचीव करना, वो आप अचीव कर लेंगे. तो नो डाउट लेक्चर मेथड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट मेथड यूज्ड बाय द टीचर्स, एंड लेक्चर मेथड इज मोस्ट यूजफुल फॉर द कॉलेज टीचर, but try to modify this method as per need of the students or as per utility of your lecture, not as a fulfill to just to complete the curriculum or the syllabus, but try to do it as a tool that gives something to your students. सेकेंड मेथड जो इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटेजी में हम पढ़ते हैं वो लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है. लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो होता है उसमें क्या है कि लेक्चर फॉलोड बाय डेमोन्स्ट्रेशन.
lecture followed by demonstration, that is useful for science subject, जहाँ पे हम किसी कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंट से दिखाते हैं और एक्सपेरिमेंट से दिखाने के बाद हम उस कॉन्सेप्ट का कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। ये मेथड जो होता है लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये स्टूडेंट के अंदर बहुत समझ पैदा कर देता है, अंडरस्टैंडिंग पैदा कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि यहाँ इन दिस केस द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व विथ सेंस ऑर्गन्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो टीचिंग एड है, ये फ्रूट मैंने जो बनाया है ये बहुत सॉफ्ट होता है, तो आई एम सेइंग दिस एंड यू आर एक्सेप्टिंग इट ओनली थ्रू वर्बल मोड। लेकिन अगर मैं उस सब्जेक्ट को, उस एप्पल को या उस फ्रूट को लेके आऊँ, फिर कहूँ इसको छूइए, इसको देखिए, अब बताइए इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो उसने छुआ, उसने कहा ये बहुत सॉफ्ट है। तो क्या है ये लर्निंग? जहाँ पे सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, वो परमानेंट काइंड ऑफ लर्निंग होती है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू मिलती है और उसकी रिटेनिंग ब्रेन में बहुत दिन तक रहती है। So lecture demonstration method is really a useful method for a student, and this method gives direct experience to the learner, and the learning remains for longer time in the brain, and these kind of experiences motivates the students to know more about the similar kind of fruits. और उसी तरीके के और फ्रूट्स कौन कौन से हैं जो सॉफ्ट होते हैं, तो वो भी समझने की कोशिश करता है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल यू कैन टेक योर फ्रॉम योर सब्जेक्ट, कि मैं कौन सा ऐसा एक्सपेरिमेंट करूं जिसमें बच्चे को रीडिंग भी दिख रही है और वो फाइंडिंग्स भी देख रहा है और वो खुद से बता भी रहा है। तो उससे क्या होता है कि वेरिफिकेशन हो जाता है। और हमारी जो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन है वो भी यही कहती है, प्रैग्मेटिक फिलॉसफी जो है वो यही कहती है कि जो बच्चे के सेंस ऑर्गन से उसको दिख रहा है, उसको समझ में आ रहा है, आप उसके थ्रू पढ़ाइए। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ फाइंडिंग्स हैं स्टूडेंट के पास, वो उसको अच्छा एक्सपीरियंस देती हैं और वो उसको स्टूडेंट को अच्छा करने के लिए प्रेरित करती हैं। तो इसी तरीके का पढ़ाइए जिसमें कुछ बच्चा आंखों से देखे, कुछ अपने हाथ से छुए, कुछ अपना सूंघे, टेस्ट ले, और वो ये समझ सके कि जो बात आपने क्लासरूम में वर्बल मोड से पढ़ाई है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। So pragmatic philosophy of education also says that the knowledge verified by the demonstration is the correct knowledge. वही knowledge सत्य है, वही ज्ञान सत्य है जिसको हम अपनी संवेदी अंगों से के द्वारा देख सकते हैं, सुन सकते हैं, चख सकते हैं, बता सकते हैं, वो सही ज्ञान होता है। तो इसलिए लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी एक कारगर मेथड है जिसके थ्रू आप अपनी टीचिंग को पढ़ा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम लेक्चर एंड लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, अदर मेथड्स आर project method, problem solving method, heuristic method. These all methods require certain kind of experimentation or certain kind of steps. Say for example in project method we follow the research method. जैसे research हम करते हैं ना, selection of topic किया, पहले topic को select किया, select करने के बाद review किया, review के बाद हम अपना design बनाते हैं अपने research का। उसके बाद हम डेटा कलेक्शन करते हैं, फिर डेटा को एनालाइज करते हैं, फिर जाके कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो इसी तरीके से प्रोजेक्ट मेथड में भी हम अपने स्टूडेंट को एक टॉपिक दे देते हैं कि आपको इस पे प्रोजेक्ट करना है, और प्रोजेक्ट करने के बाद उसको बता देते हैं कि आपको ये स्टेप्स इसमें फॉलो करने हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स भी सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज लेते हैं। But when you will observe that these all methods, that is experimental method, project method, heuristic method, these all demands time. इनको समय की बहुत आवश्यकता होती है। आप कोई भी
प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू या प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू अपना करिकुलम समाप्त करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि समय बहुत लगता है। एक एक टॉपिक आप देंगे बच्चे को और वो फिर डेटा उसमें कलेक्ट करेगा, फिर डेटा कलेक्ट करके उसको फिर लाएगा, फिर लाने के बाद उसमें कंक्लूजन ड्रॉ करेगा, तो कैसे पॉसिबल है। इसलिए जो बेस्ट मेथड है किसी भी करिकुलम के लिए वो लेक्चर और लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन है। लेक्चर मेथड विद मॉडिफाइड लेक्चर मेथड एंड लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन मेथड विद सर्टेन पॉइंट्स और विद सर्टेन टॉपिक्स, जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है। जबरदस्ती भी तो डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो जहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है वहां के लिए हम लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन। सो दिस इज द सजेस्टिव idea from my side that you try to fulfill your curriculum passing through lecture method and the lecture demonstration method. Somewhere if project method is essential, you can give it at the beginning. एकदम जब सेशन स्टार्ट होता है तब आप उस प्रोजेक्ट को शुरू करा दीजिए, फिर 2-2.5 महीने का टाइम दे दीजिए बच्चे को कि भाई आपको इस टॉपिक को प्रोजेक्ट के द्वारा पढ़ना है और आप पढ़ने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए। तो व्हाट आई वांट टू से कि करिकुलम जो बनाया जाता है वो सिर्फ इसलिए नहीं बनाया जाता है कि हम जाएं और पढ़ाएं और आ गए और ये कोर्स कवर हो गया और इतना हो गया। नो, डजंट मीन। करिकुलम जो भी बनाया जाता है उसका सीधा मानी होता है कि जो हमने ऑब्जेक्टिव्स, ये अभी भी आपकी स्लाइड दिख रही है, नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव्स हमने बनाए हैं इनकी पूर्ति हम कैसे एक अच्छे ढंग से करें, कैसे हम इनको प्राप्त करें कि पढ़ने वाले की रुचि उस करिकुलम में बनी रहे और वो आगे भी पढ़ने के लिए प्रेरित हो। तो इसके लिए क्या जरूरी है कि आपका जो पढ़ाने का तरीका है, जो आपका मेथड है, इट शुड बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव एंड ऑर्गेनाइज्ड, आर्टिकुलेटेड आल्सो। तो जब आप पढ़ाने जब भी जाया करें क्लास में, उससे पहले अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। और बिल्कुल एकदम क्लास में गए वहीं पे जाके हम प्रिपरेशन करना। कभी भी एक अच्छा टीचर बनना है तो क्लास में जाने से पहले उसकी प्रिपरेशन करिए 2-3 दिन पहले, और देखिए कि इस कंटेंट को हम कितने पॉइंट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इस पॉइंट में कितने सब पॉइंट्स बन सकते हैं, कौन सा सब पॉइंट है जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन की जरूरत है, कौन सा सब पॉइंट है जिसमें लेक्चर की जरूरत है, कौन सा सब पॉइंट है जिसमें एक्सपेरिमेंट भी हम कर सकते हैं, और कौन सा पॉइंट है जिसमें हम टीचिंग एड ले जाके बता सकते हैं, कौन सा पॉइंट है जो ज्यादा एलेबोरेशन चाहता है और हमारी तरफ से ये उम्मीद करता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल इसमें कोट करने हैं। तो ये जो डिसीजन है ये 2-3 दिन पहले लेके एक स्केच अपने जहन में बना लीजिए कि पढ़ाने में हमको इस पॉइंट के थ्रू आगे बढ़ना है। तो वो एक अच्छी टीचिंग होती है, और वहां हम कह सकते हैं कि हमने बच्चे के जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, और हमने ये एक आशा थी कि हमारा स्टूडेंट मेंटल प्रोसेसेस के थ्रू बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते इतना आगे बढ़ जाएगा कि वो उस विषय में लिखने भी लगेगा स्वयं। तो वो क्या हुआ, वो तभी होगा जब हमारे एफर्ट्स सही होंगे। अगर सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह आप नहीं पढ़ाएंगे तो वो सब्जेक्ट से बच्चे की रुचि हट जाएगी और वो सिर्फ रटना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को बहुत ही एक्टिव, एज अ एक्टिव टीचर, एज अ डायनेमिक वॉरियर आपको आगे बढ़ना है। अब जो आपका आखिरी पॉइंट है वो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब है कि आपने जो कुछ भी पढ़ाया, वॉट एवर यू हैव टॉट इन द क्लासरूम, नाउ यू वांट टू असेस दिस नॉलेज। Evaluation is a very important process for the improvement of the curriculum. Say for example, I am going in the classroom with each and every kind of concepts with clear and making efforts, but unfortunately my students are not giving good results. They are saying that 50 में से सबका 25 आ रहा है, किसी का 26 आ रहा है, and no one is getting the progress. तो यहाँ पे क्या वजह है? What is the reason that this curriculum and we are not getting the good results? The reason may be that the curriculum that we have selected for the student may difficult,
जो उनका एज लेवल है उससे ज्यादा है उसका करिकुलम, और वो करिकुलम की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनके का कहा गया है ना कि इनके बस्ते का लोड कम करिए, ये इतना लोड लेके स्कूल जाते हैं कि झुक के चलते हैं और फिर वहां पूरा पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो ये जो हमारा करिकुलम है वो अगर इम्प्रूवमेंट चाहता है तो वो एट द स्टेज ऑफ इवेल्युएशन पता चलता है, when we assess our students and we see the results, and if the students are getting good marks, and fortunately they all are getting first division or more than 70%, you can say really I am a good teacher, curriculum is adequate, and it only needs my professional development, that whatever I taught this year I would enrich it next year, मैं इसको अगले साल और enrich कर लूंगा, तो जिससे क्या होगा कि मेरी अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ डेवलप होगी। तो ये इवैल्यूएशन जो है वो आपको बताता है कि आपने कितनी मेहनत की और मेहनत के बाद आपके रिजल्ट्स क्या आए। इवैल्यूएशन को भी हम करिकुलम की अगर बात करते हैं तो 4 हिस्सों में बांट देते हैं। Say for example, first one is formative evaluation. Formative evaluation is that kind of evaluation that provides that we do at the entry level. जैसे बच्चा बीएससी में आ रहा है या बीए में आ रहा है तो हमने एक एंट्रेंस टेस्ट लिया, तो जब हम उसका एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं तो हम ये चेक कर रहे हैं कि उसने 12th में कितना पढ़ा, उसने एंट्री लेवल पे जब जो है तो हाउ फार ही इज एबल टू कवर द प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और प्रीवियस कंटेंट, उसकी कितना उसको समझ है। 12वीं क्लास की समझ अगर अच्छी है सब्जेक्ट की तभी वो एंट्रेंस में एंटर कर पाएगा, तभी वो एंट्री ले पाएगा बीएससी में या बीए में। तो व्हेन द इवैल्यूएशन दैट टुक प्लेस एट द एंट्री लेवल इज नोन एज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, उसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं, उसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। सेकेंड इवैल्यूएशन that we usually use is during the learning process. जब हमारी learning process चल रही होती है तो learning process में जैसे हमने आपको बताया कि आप जिस भी मेथड से पढ़ा रही हैं तो आप रोज बच्चे से सवाल जवाब करिए, पूछिए, होमवर्क दीजिए, उस होमवर्क को चेक करके देखिए कि वो बच्चा कितना समझ रहा है। तो वो क्या कहलाता है, वो जो ड्यूरिंग द सेशन चल रहा होता है वो इवैल्यूएशन आपका सेशनल मार्क्स के फॉर्म में होता है, जो आपका सेशनल मार्क्स के फॉर्म में चलता है और डायग्नोसिस इवैल्यूएशन के नाम से जाना जाता है। डायग्नोसिस इवैल्यूएशन में हम उन बच्चों की जो डिफिकल्टीज प्रॉब्लम है, जैसे कोई बच्चा स्पीच में बहुत कमजोर है, कोई बच्चा जो है वो देख नहीं पाता है या शर्माता है, कोई कॉम्प्लेक्स है, तो वो भी हम इसमें चेक कर लेते हैं कि कौन से ऐसे बच्चे हैं, जो कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशल काइंड ऑफ अटेंशन हमसे चाहते हैं, जो हमसे हमारा अटेंशन उन पे स्पेशल होना चाहिए और हमें उनको ज्यादा एफर्ट्स देने होंगे। आखिरी का जो होता है इवैल्यूएशन वो समेटिव होता है। समेटिव इवैल्यूएशन हम सारे इवैल्यूएशन को सम अप कर देते हैं, यानी शुरू में जो पढ़ाया, बीच में पढ़ाया, उसके बाद पढ़ाया, उसके बाद पढ़ाया और सम अप। तो समेटिव इवैल्यूएशन मींस टोटल प्रोग्रेस अगर हमें स्टूडेंट की चेक करनी है तो वो हम उसको समेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू चेक करते हैं। समेटिव इवैल्यूएशन में भी आप चाहें तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दे सकते हैं, आप चाहें तो मल्टीपल दे सकते हैं, आप चाहें तो मैचिंग दे सकते हैं। जितना ऑब्जेक्टिविटी आपके पेपर में होती है असेसमेंट उतना ही अच्छा होता है। जैसे आपने एक का निबंध लिखिए, आप फला टॉपिक पे, आप एक्स टॉपिक पे निबंध लिखिए, और उस निबंध में आप जब पढ़ रहे हैं तो बच्चे ने अपने एक्सपीरियंसेस, किताब के एक्सपीरियंसेस सब तितर बितर कर रखे हैं, तो वो क्या होगा, उससे आपको उसका इवैल्यूएशन करने में समझ नहीं आएगा, सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होगा। और अगर आप मल्टीपल चॉइस देंगे तो आप ये समझ सकेंगे कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कितनी है। So this evaluation depends on you कि आप कितना पेन्स ले रहे हैं और कितना आप बता रहे हैं।
ठीक है। अब देखिए मैं आपको थोड़ी सी और स्लाइड्स दिखाती हूँ। सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच, जो करिकुलम डिजाइनिंग की सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच है वो क्या है? जैसे टेक्स्ट बुक डेवलप करते हैं, हम कैसे करते हैं? बहुत से फैक्ट्स को, बहुत से कॉन्सेप्ट्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं, इकट्ठा करके उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम तब लिखना, पूरी किताब को डेवलप करते हैं। इसमें किताब को जब डेवलप किया जाता है तो रिसोर्स पर्संस जो होते हैं उनका भी ओपिनियंस ली जाती है। उनके ओपिनियंस क्यों ली जाती है? क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं और वो ज्यादा जानते हैं कि किस लेवल पे हम कितना अच्छा पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो फैक्ट्स, कॉन्सेप्ट, जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल, थ्योरीज आर ऑर्गेनाइज्ड. Interrelated content is organized in logical manner. Integrated threads are organized in the form of subject. Integrated threads exist at 3 level. First is broad level. जैसे आपका सब्जेक्ट जो है इंग्लिश है तो इंग्लिश ब्रॉड लेवल है। मीडियम लेवल उसको और छोटा कर दिया, नैरो उसका और स्पेशलाइजेशन कर दिया कि इंग्लिश को भी आपने बताया कि इसमें प्रोज भी है, पोइट्री भी है, ड्रामा भी है, तो वो नैरो लेवल हो जाता है। तो इस जो नॉलेज का एस्पेक्ट है किसी भी करिकुलम का, वो 3 हिस्सों में बटा है, ब्रॉड लेवल, मिडिल लेवल एंड नैरो लेवल। नैरो लेवल पे स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाता है। ये देखिए लिखा हुआ मैंने, ब्रॉड लेवल सच एज लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आप। Medium level English, Tamil, arithmetic, algebra, astronomy and so on. Specific level literature is organized into essay, poetry, drama and fiction. अब इनके क्या sources हैं? Opinion of experts, suggestion of teachers, review of instruction material, academic, social and cultural experiences of the students. Types of subject based approach, content oriented form और structure oriented form. ये भी जो आप टेक्स्ट बुक करते हैं, एक तो कंटेंट ओरिएंटेड जिसमें राइटिंग लिखी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है टाइप्ड वर्ड से आप उसे पढ़ा रहे हैं। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड फॉर्म वो होता है जहाँ पे आप उसके कॉन्सेप्ट मैप्स बना देते हैं, या कॉन्सेप्ट मैप्स बनाने के बाद आप कोई पिक्टोरियल डायग्राम देते हैं, बार डायग्राम देते हैं, कोई फ्लो चार्ट दे देते हैं, तो वो क्या है? स्ट्रक्चर ओरिएंटेड फॉर्म होता है। कंटेंट ओरिएंटेड एंड स्ट्रक्चर ओरिएंटेड फॉर्म, ये दोनों मैंने आपको लिखे हुए। इस जो सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच होती है उसके कुछ तो खूबियां हैं और कुछ खामियां हैं। खूबियां क्या है कि एक ही जगह पे सारा कंटेंट है, बच्चे ने पढ़ लिया, इम्तिहान दे लिया, लेकिन मास्टरी नहीं हो पाती उसकी सब्जेक्ट की। वो सिर्फ इम्तिहान के पर्पज से पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसको भूल जाता है। इसी तरीके से इसके कुछ खूबियां ये है कि आपके लिए बहुत आसान रहता है। कौन सा टॉपिक किस किताब में दिया है आपने बता दिया, भाई फलाने जॉनसन एंड जॉनसन की किताब पढ़ लेना, उसमें प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम बहुत अच्छे दिए हुए, तो उन्होंने पढ़ लिया, तो आपके लिए आसान है, बच्चे के लिए, इम्तिहान के लिए आसान है। लेकिन मास्टरी जो एक कंटेंट की होती है वो इससे नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि समय इतना नहीं दिया जाता है कि बच्चा एक एक टॉपिक को पढ़े और बहुत दिन तक पढ़ता रहे। उसको भी इम्तिहान के लिए प्रिपेयर करना है, तो वो एग्जाम के अनुसार पढ़ के इम्तिहान देता है। डिसएडवांटेजेस, as the body of knowledge is organized into a number of distinct and different subject areas, subjects are not only isolated from experiences, but each subject is also insulated from another, and thus fragmentation dominates the entire world of knowledge. फ्रैगमेंटेशन शुरू हो जाता है, कोई टॉपिक किसी से रिलेटेड नहीं है, कोई किताब किसी से रिलेटेड नहीं है, कोई एक किताब इंग्लिश में लिखी है जो बहुत एनरिच्ड है, एक किताब दूसरी लैंग्वेज में लिखी है जिसमें इतना कंटेंट नहीं दिया गया है। तो ये जो सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच है एक यूनिफॉर्मिटी नहीं लाता, लेकिन फिर भी टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय यूजिंग सुटेबल टेक्निक्स एंड डिवाइसेस ऑफ टीचिंग, this approach is much more fruitful for the students, those who are studying at graduate level. जो ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ते हैं
उनके लिए ये अच्छा है। एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच ये छोटी क्लासेस के लिए होता है, जहाँ पे हम एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कराते हैं और एक्टिविटीज कराने के बाद हम बच्चे को देखते हैं कि उसने कितना पढ़ लिया। तो इन एक्टिविटीज से बच्चे के साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और जो उसका एक स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि 4 महीने में कोर्स और सिलेबस अगर आपको खत्म करना है तो फिर आप नहीं खत्म कर पाएंगे। वहां पे फिर आपको सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच और लेक्चर मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच जो है वो इज अ गुड वे, but somewhere and somehow we are unable to complete our syllabus, and only thing is that you try to perform certain activities for certain topics where there is urgently needed, and somewhere not needed, try to use modified lecture. वहां आप modified lecture का इस्तेमाल करिए। डिसएडवांटेजेस जैसे मैंने आपको बताया, दिस अप्रोच डिमांड्स बेटर फैसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ स्पेस, accommodation, equipment, qualified teacher and so on, which in ordinary institutions may not normally possess. Learning is not economical as it requires additional time on the part of both the teacher and the taught. अब देखिए एक और ये है द एनवायरमेंट बेस्ड अप्रोच। एनवायरमेंट बेस्ड अप्रोच जो है वो बहुत ही छोटी क्लास जो कि जैसे प्री प्राइमरी क्लास का होता है, नर्सरी का बच्चा, वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेसिफिकली आवर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ अप्रोच। वो क्या है वहां पे कि जैसे एनवायरनमेंट को 4 हिस्सों में बांटा, फिजिकल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट। अब देखिए आप इसको जो मैंने ये जो 4 वर्ड्स मैंने लिखे हैं, पूरा करिकुलम इन 4 वर्ड्स के ही चारों तरफ होता है। आप बड़े क्लास का करिकुलम देखिए, वो भी फिजिकल एनवायरनमेंट उसको चाहिए, नेचुरल एनवायरनमेंट उसको चाहिए, सोशल एनवायरनमेंट उसको चाहिए, कल्चरल एनवायरनमेंट उसको चाहिए। और बड़े छोटे से ही बच्चा बड़ा होता है, तो जहाँ पे छोटी क्लास के बच्चे की अप्रोच हमारी ऑब्जर्वेशन है, वहाँ बड़े बच्चे की हमारी टेक्स्ट बुक अप्रोच हो जाती है। क्यों हो जाती है कि छोटे बच्चे का स्पैन ऑफ कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, एक्सपीरियंसेस भी बहुत कम होते हैं, और बच्चा जैसे जैसे ग्रो करता जाता है उसका मेंटल प्रोसेस डेवलप होता जाता है, और उसके डेवलपमेंट के साथ साथ वो मैच्योर भी हो जाता है। तो वो टेक्स्ट बुक को पढ़ सकता है, वो टेक्स्ट बुक को देख सकता है कि कौन सी, इवन वो असेस भी कर सकता है कि कौन सी टेक्स्ट बुक अच्छी है और कौन सी खराब है। आप लोग तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के टीचर्स हैं, तो आपके पास बड़े स्टूडेंट्स होते हैं, तो यू मस्ट ट्राई दैट योर स्टूडेंट मस्ट असेस द टेक्स्ट बुक ऑल्सो, कौन सी टेक्स्ट बुक अच्छी है, किस किताब में कौन से कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, किस में कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं। तो वो आपको भी हेल्प करेंगे और आप भी उसके अकॉर्डिंग अपने लेक्चर को एनरिच करेंगे। अब जो बच्चों की बात चलती है, तो फिजिकल एनवायरनमेंट में एग्रीकल्चरल फार्म्स, जैसे कहीं पे खेती करी जाती है, हमने हमको एक किताब में बताया कि ये धान की खेती होती है, मक्का की खेती होती है। अब उसको हम ले गए एग्रीकल्चर लैंड पे और वहां पे जाके दिखा रहे हैं कि देखिए धान की खेती में हमें पानी डालना पड़ता है, इतना पानी होना चाहिए, और इतना उस पानी में धान जो है वो अच्छे होते हैं। तो ये क्या है, ये हम उनको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये छोटे बच्चे एंजॉय करते हैं, क्योंकि उनको आप रटाएंगे, बताएंगे, तो फिर आप भी इरिटेट होंगे कि ये याद नहीं करता है। तो वो अच्छी लर्निंग नहीं है। छोटे बच्चे की लर्निंग कब अच्छी है, जब वो खुद देखता है। फिजिकल एनवायरनमेंट में एग्रीकल्चर फार्म्स, बिजनेस सेंटर्स, इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जैसे चूड़ियाँ बनती हैं फिरोजाबाद में, कारखाने हैं, चूड़ियाँ कैसे बनती हैं, कैसे तारकश जो है वो तार खींच के चूड़ी में डालते हैं, और कितनी आग में तपते हैं वो, ये यू कांट इमेजिन कि उनको आग में भी तपना पड़ता है। हमको सिर्फ ये पता है कि चूड़ियाँ रंग बिरंगी हैं, लेकिन चूड़ी कैसे बनी ये हम इंडस्ट्रियल यूनिट की विजिट करके ही देख सकते हैं।
नेचुरल एनवायरनमेंट, माउंटेन्स, ओशंस, एटमॉस्फेयर, ये सब किस में आते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट में आते हैं। उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट में क्या आते हैं? मार्केट प्लेस, थिएटर, फेस्टिवल, और कल्चरल एनवायरनमेंट में कल्चरल सेंटर्स, जो आपके म्यूजियम हैं और आपका डॉल सेंटर्स होते हैं, और आपके बहुत से मिथोलॉजी में दिखाए गए हैं कि ये हमारे राजा महाराजा, संग्रहालय जिन्हें कहते हैं, संग्रहालय में आप देखिए इधर इलाहाबाद में है नेहरू मेमोरियल, पूरा किताबें, चश्मा, छड़ी नेहरू जी की सब रखी हुई है। इंदिरा जी ने जो लेटर्स लिखे थे नेहरू जी को, नेहरू जी ने जो लिखे इंदिरा जी को, वो लेटर्स की कॉपीज भी वहाँ रखी हुई है। इंदिरा जी की जब शादी हुई तो वो कितने साल की थी, कहाँ पे शादी हुई? एक चबूतरे पे बैठ के शादी हुई है आर्य समाज विधि से, जहाँ पे चंद लोग हैं, और उसमें वो पूरी शादी वहाँ पे दिखाई है। तो वो उसकी तस्वीरें भी वहाँ हैं उस संग्रहालय में। तो ये क्या है? ये हमारे पुराने कल्चर को, हमारे पुराने ट्रेडिशंस को, और बहुत सी ऐसी चीजें जिसको हम सुनते हैं सिर्फ, वो सब हमको इन जगह पे देखने को मिलता है। और बड़ा आनंद भी आता है देख के कि हमने ये पढ़ा था कि नेहरू जी ने जेल से इंदिरा जी को लेटर लिखे, लेकिन जब वो लेटर्स दिखते हैं हकीकत में तो बहुत अच्छा महसूस होता है। तो बच्चे जब देखते हैं तो उनको और अच्छा लगता है, और हम उनको बताते हैं कि देखिए ये गांधी जी का चश्मा है, ये नेहरू जी की छड़ी है। तो वो और अच्छे से कल्चरल एनवायरनमेंट, एक जो हिंदुस्तान की कल्चर है, हेरिटेज है, उसके लिए वो सजग हो जाते हैं। एक टेम्पल का जहाँ पे हम पूजा करते हैं और जाके हम भगवान से अपनी प्रार्थना करते हैं, वो जगह हम दिखाते हैं। टेम्पल में भी हम गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, सब जगह बच्चों को घुमाते हैं, तो बच्चा उससे खुश होता है। जो किताब का कॉन्सेप्ट है उसको जब वो ऑब्जर्व करता है तो उससे वो खुश होता है। लेकिन ये प्राइमरी लेवल की लर्निंग के लिए सही है, बड़े बच्चों के लिए ये बेनिफिशियल नहीं है। एग्जीबिशन देखिए जब भी लगती है तो आपने देखा होगा, केरल का भी माल आया है उसमें, तमिलनाडु का भी है, और तमाम जो स्टेट्स हैं उन सब का है। और लोग खरीदते भी हैं कि ये वहाँ का सूट है, ये कपड़ा वहाँ का अच्छा है, फर्नीचर कहाँ का अच्छा है, कालीन कहाँ का अच्छा है। तो एग्जीबिशंस दिखाकर हम अपने पूरे हिंदुस्तान की संस्कृति को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं, और उस संस्कृति को हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कि देखिए हमारा जो हिंदुस्तान है उसमें कौन सी चीज़ कहाँ पे मशहूर है। तो कल्चरल एनवायरनमेंट, और ये ज़रूरी है हमारे बच्चों में कल्चरल वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए। आपने सुना होगा NEP 2020 जो नई शिक्षा नीति आई है, वो आपको कई जगह वेबिनार्स भी हुए, आपने भी अटेंड किए, सर्टिफिकेट्स भी आपको मिले। लेकिन जो स्पिरिट है NEP 2020 की, वो क्या है बताइए? आप लोगों में से कोई एक जवाब दे। 2020 जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसकी क्या विशेषता है? बताइए, कोई भी एक बताइए, मैं नाम लेके। हाँ Ma'am, flexibility that every student can be जी, system. to develop physical education. Flexibility and mobility. हाँ, यस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, और imparting quality education. क्वालिटी एजुकेशन, वेरी नाइस। और बताइए, पढ़ा है आपने क्वालिटी एजुकेशन? Skill oriented. Skill oriented. Yes, Blended skill mode of oriented learning. quality, blended mode of learning। और बताएं। Blended mode. अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दिया। हाँ, Blended education. और क्या क्या इसकी खासियत है नई शिक्षा नीति की? learner
learner centered Multiple education. exit and entry. Multiple exit and entry. और बताइए Learner One of the feature is structure of education is 5 plus 3 plus 4 structure. Credit back. Ma'am, one of the major characteristics of NEP is curricular structure. It is 5 plus 3 plus yes 3 plus 4 structure now. yes और बताइए और बताइए जॉब ओरिएंटेड है मैडम. हाँ जॉब ओरिएंटेड है All the curriculums on a common platform. जी जी पढ़ाया आप लोगों ने पढ़ाया और बताइए अच्छे जवाब दिए बहुत अच्छे जवाब दिए और बताइए Concept of cluster college. Interdisciplinary approach. Hello. डिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी सही है अच्छा है मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं करिकुलम और हम आपको इसके Establishment of cluster colleges. वहाँ क्लस्टर कॉलेजेस और बताइए Internationalization of higher education. इंटरनेशनलाइजेशन अच्छा बताया और ये देखिए ये जो कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं करिकुलम के लिए इसी के अकॉर्डिंग हमारे बच्चों को करिकुलम Qualitative aspects. और बताइए Establishment of foreign universities, ma'am, in our countries. और यस भाई जो बच्चे कम जिनके पास पैसे नहीं है वो कैसे बाहर पढ़ेंगे तो हम लोगों ने उनको भी अपॉर्चुनिटी दे दी और बोले अच्छे रेस्पॉन्सेज हैं आपके तो देखिए नई शिक्षा नीति जो 2020 है न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसको भी देखिए उसमें जो करिकुलम की बात कही गई है तो आपको लगेगा प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गुड ऑर्गेनाइजेशन कोहेरेंस वो सब उसकी बात कर रहे हैं इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही है जिसको मैं आपसे वो क्या है मैम क्लस्टर कॉलेज के अंदर मैम करिए क्लस्टर कॉलेज की बात कही है Ma'am, some innovative activities. यस इनोवेटिव एक्टिविटीज बहुत सही जवाब है और बताइए Ma'am, choice of learner is given priority. हाँ चॉइस ऑफ लर्नर जिससे कि वो अपनी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आगे काम कर सके और sharing of resources, ma'am. Once the cluster college is established, Multidisciplinary colleges in higher education institutions. बताइए देखिए Removing language barriers. Choices based on one's own interest. आपने बहुत अब आप Removing the language barriers in education. Madam, it encourages virtual learning. It encourages virtual learning. स्किल ओरिएंटेड बताइए कल्चरल Choice based credit system
multidisciplinary subject, multidisciplinary बताइए। वोकल फॉर लोकल मैम, लिखा गया है मैम। किसको? रीजनल और वोकल लोकल। हाँ, लैंग्वेजेस की भी बात कही गई है, वोकल लैंग्वेजेस की भी तो बात It कही will गई है remove कि the जो language barriers and provide education Yes. to all sects. हाँ हाँ, देखिए ऐसा नहीं होता है कि जैसे इंग्लिश में बच्चे कमजोर है, वो टीचर इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, घर में नहीं है इंग्लिश का माहौल, तो वो बच्चा बहुत ही डिप्रेशन में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि चॉइस दीजिए, जो उसकी फैमिली लैंग्वेज है उसी में उसको पढ़ने दीजिए। तो ये लोकल लैंग्वेजेस की, रीजनल लैंग्वेजेस की, फैमिली लैंग्वेजेस की, इन सब की बहुत ही इन्होंने कहा है। तो ये जो हमारी नई शिक्षा नीति है वो भी क्या कहती है कि हमें एक ऐसा अपना लर्नर डेवलप करना है जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता से भी परिचित रहे, क्योंकि उसमें नेचुरल इथोस होने चाहिए, उसमें नेशनल इथोस पैदा करनी है और हमें एक अच्छा भारतीय नागरिक बनाना है। तो ये जो मैं कल्चरल एनवायरनमेंट पे आपको जोर दे रही थी, वो इसीलिए दे रही थी कि उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का भी परिचय विद्यार्थी पे होना चाहिए, इसको भी इम्पोर्टेंस दी है नई शिक्षा नीति में। तो हमें अपने विद्यार्थी इंडियन स्टूडेंट्स डेवलप करने हैं, दोज विल बी जॉब ओरिएंटेड, स्किल ओरिएंटेड, having much more experiences of the foreign university, having multiple entry, multiple exit, and they will be easier and they will be able to go through their studies Ma'am, it's without academic bank of credit. any compulsion, without any pressure. हाँ, एकेडमिक बैंक भी जैसे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की बात चल रही है, तो जितना उसने किया उसका एक क्रेडिट बैंक है, वो उस क्रेडिट बैंक में चला जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग ma'am. उसको डिग्री या सर्टिफिकेट मैम इसे ही एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसे ही कहते हैं क्या? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जी जी ठीक है। अगर आपको कोई सवाल पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिए प्लीज। May I ask, ma'am? Yes please, yes please. Ma'am, you have told us there are the 4 methods of evaluation. So you taught formative evaluation, then diagnosis evaluation. Last one you told summative evaluation. I just want to know what is the name of the third kind of evaluation. थर्ड, सबसे पहले तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। सबसे पहला होता है प्लेसमेंट, जो एंट्री लेवल पे होता है। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब है कि हमने बच्चे को प्लेस किया उसके अकॉर्डिंग, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड समेटिव। पहला प्लेसमेंट होता है जहाँ पे हम उसको प्लेस करते हैं एज पर एकेडमिक कैपेबिलिटीज, यानी एंट्री देते हैं। सेकंड होता है फॉर्मेटिव, जो चलता जाता है, जैसे पढ़ाते जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम उस बच्चे को चेक करते जाते हैं। तीसरा जो डायग्नोस्टिक होता है, उस डायग्नोस्टिक में हम ये देखते हैं कि बच्चे की कोई डिफिकल्टी तो नहीं है, जैसे किसी को बोलने में परेशानी है, किसी को लिखने में परेशानी है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक कहते हैं। और समेटिव एट द लास्ट होता है। Okay, thank you, ma'am.